Hello. Hello. Am I audible? Okay, guys. I think now I'm audible. Yes. Okay. So, guys, let us start. We have learned, Kepler's planetary motion. First and second, we have discussed already. And now is the time for the discussion of third law of planetary motion. You can say Kepler's third law of planetary motion, guys. तो सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ था ds by dt is L by 2m is equal to ds means pi ab, है ना? Pi ab means total orbit का area और total time of rotation, that is capital D. We can say that is constant. Is it? These quantity are constant. Getting it or not, guys? So this angular momentum can be written as pi ad into 2m upon t. This is the angular momentum of that planetary motion. Are you getting the point? Okay. थम्स अप शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके. Here. So guys, note down the third law of planetary motion. Third law. अच्छा, सेकेंड लॉ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? लॉ ऑफ एरिया. फर्स्ट लॉ था every planet revolve around the sun, where in elliptical orbit sun will be at least one foci of the orbit. Okay, elliptical orbit, guys. And second one is area swept by what? Position vector from the planet to the sun will be equal in equal interval of time, that is ds by dt is equal to constant. Either we can say what we have written over there. Okay, ds upon dt is equal to what? What was that relation? ds upon dt is equal to, क्या लिखा था? कुछ याद है ना? ठीक है, L by 2m is equal to constant. उसी को हम लिख सकते हैं pi ab upon total time period of one rotation. Pi ab upon capital T. Okay, is there any problem? No. So this is the time to study the Kepler's third law of planetary motion, that is the law of period. Okay, the third one is Kepler's third law of planetary motion. Third law of planetary motion. Third law of planetary motion. It is also called as law of period. Law of period. First law of planetary motion is known as, law of orbit. Second law of Kepler's second law is also known as law of area. And third law of planetary motion, either we can say the third law of Kepler, the third Kepler's law is known as law of period. Getting it or not? Okay, getting it or not? So guys, we have to
draw a diagram what we have previously drawn. Okay, guys. तो उसमें ये देखा गया है कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट स्टेटमेंट लिखिए द स्क्वायर ऑफ period of revolution of planet the square of period of revolution of planet in its orbit is directly proportional to is directly proportional to the cube of the semi-major axis, proportional to the cube of to the power 3, that is cube means power 3. Its orbit is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit around the sun, of the elliptical orbit around the sun, elliptical orbit around the sun means कि t square proportional to small a cube, t square proportional to small a cube, where small a is the semi-major axis. Semi-major axis. Have you noted it down, guys? You should note down this statement, and I am going to draw the diagram. तो आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके नीचे ये डायग्राम बना लो. Okay, this one is semi minor axis, this one is semi major axis. Here is sun at one foci, sun is at one foci. Here is the planet, guys. Getting it out. तो suppose ऐसे मूव करता हुआ कोई प्लैनेट यहाँ चलता है, तो ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाली है ना. इसको मैं क्या कह रहा हूँ A, इसको मैं क्या कह रहा हूँ B. तो इसको क्या लिखा जाए, इसको लिख लो A और ये B. तो वन रोटेशन में मान लो ऐसे रोटेट होके यहाँ पे आ गया, तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि t स्क्वायर अगर वन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कैपिटल T है, मैं ये रब कर दूं, मैं रब कर दिया. तो गाइस अभी क्या है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, जब पेरीहिलियन पॉइंट पे था तो ये डिस्टेंस को मैं स्मॉल r1 मान रहा हूं, और एपीहिलियन के अराउंड ये डिस्टेंस में स्मॉल r2 मान रहा हूं. ठीक है, बताएं बच्चों, करेक्ट है ये? बोलो. ओके. तो गाइस ऑब्जर्वेशन ये कहता है
कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, ये ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ आया? तो जी टाइम पीरियड जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाना चाहें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट आया है वो क्या है? 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ सन, ये कांस्टेंट है, इंटू ए क्यू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने की बात है। अच्छा, तो ये कहां से है? ये कहां से है? बोलो। ये है कि पूरा अगर ये सर्कुलर मोशन हम मान लें, तो सर्कुलर मोशन में टोटल लेंथ कितनी है? मीन्स की सरकमफरेंस 2 पाई आर, और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसकी अगर कंडीशनिंग देखें, ठीक है, तो 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल स्पीड, उससे अगर निकालेंगे तो ये कंफर्मेशन आएगा टाइम पीरियड वाला। कोई प्रॉब्लम किसी को भाई? नहीं। तो जो स्मॉल ए की वैल्यू आनी है वो क्या है? बोलो। उसको क्या हम लिख रहे हैं? R1 plus R2 by 2 on an average, R1 plus R2 by 2, ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको अप्रॉक्सीमेट किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो फॉर सर्कुलर ऑर्बिट A is equal to B is equal to R, that is orbital radius, देखो फॉर सर्कुलर मोशन, ये तो इलिप्टिकल है ना, तो लिखो फॉर सर्कुलर मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। अब जब पूरा ये सर्कल का हिस्सा होगा तो A इज इक्वल टू बी होगा, वही R होगा, जिसको कहेंगे ऑर्बिटल रेडियस। बताएं भाई, कोई डाउट किसी को? क्लियर? तो इसमें अगर A की वैल्यू हम पुट कर दें, A की वैल्यू अगर पुट कर दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएस इंटू ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आर क्यूब, और ये तो कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखा जा सकता है ना? तो टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसको फाइनली देखो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हम लिख सकते हैं। तो कोई भी सर्कुलर में प्लैनेट का जो ऑर्बिटल मोशन हो रहा है प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, उस सर्कुलर मोशन का, है ना, एवरेज डिस्टेंस। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि सन को सेंटर में मान के अगर कोई भी प्लैनेट हम सर्कुलर मोशन ऑन एन एवरेज मान ले, तो उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है सन के उस प्लैनेट की, उसकी पावर 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन। गेटिंग इट और नॉट? तो यह थर्ड लॉ। कोई बोलो किसी को प्रॉब्लम है? You do not have any problem at this juncture. Okay? तो मैं अगर बात करूं कि टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो आंसर क्या होगा? जो सैटेलाइट की थी उसी कॉन्सेप्ट से बताओ, कुछ याद है? रिवाइज भी करते रहे बच्चों। तो लिख लो टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, total energy of planet, total energy of planet in elliptical orbit
वो कितनी होगी, माइनस जीएम एम, ये क्या है, सन का मास इंटू एम अपॉन डिस्टेंस, वो वाली, ठीक है, और बाई 2, ये फंडा क्लियर। हाँ जी, फंडा क्लियर क्या। अभी ये साउंड की क्वालिटी बताना जरा मेरे माइक की, अभी सही है या 2 दिन पहले जो हम लोग माइक यूज कर रहे थे उसकी क्वालिटी सही थी, ठीक है। अगर अभी ठीक है, ठीक है, तो अभी लिखो, अभी वाली माइक की क्वालिटी पहले से बेटर है तो अभी लिखो, ठीक है। और अगर पहले वाली क्वालिटी सही थी माइक की तो तभी लिखो, तब, ठीक है। जरा मैं जानना चाहता हूं कि आपको साउंड क्वालिटी सही सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही, ठीक है। तो बच्चों ये रहा केपलर्स 1 2 3 सारे लॉस, इसमें कोई किसी को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हो। एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ। शो योर थम्स अप, शो योर थम्स अप। हाँ जी सर, हाँ, अच्छा, क्लास ले रहा था, फेंक रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। जस्ट वेट मी गाइस, 1 minute। सॉरी फॉर इंस्ट्रप्शन गाइस। सो हाँ बताएं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर यहाँ तक किसी भी कॉन्सेप्ट में तो जरूर शेयर करेंगे, लिखना है आपको, ठीक है, लिखिए जरूर। कोई दिक्कत आ रही है तो प्रोसीड करूं मैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलो जी प्रोसीड कर लेते हैं, प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, आइए, तो बच्चों लिखिए, प्रोजेक्शन ऑफ spaceship and satellite from Earth। Projection of spaceship and satellite projection of spaceship and satellite from Earth surface। Getting it? अर्थ के सरफेस से कोई सैटेलाइट हम कैसे लॉन्च करते हैं और स्पेस शिप कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में कैसे लॉन्च करते हैं और स्पेस शिप कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में बात करें बच्चों। तो सबसे पहले सपोज ये है तुम्हारा अर्थ बच्चों, तो सबसे पहले सपोज ये है तुम्हारा अर्थ, तो अर्थ का मास कितना है बोलो, तो तुम्हें रट जाना चाहिए अर्थ का मास,
6 into 10 raised to power 26 किलोग्राम। अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर। इक्वेटर पे कितनी ज्यादा है 22 किलोमीटर अप्रॉक्स। समझे? ये शेप नहीं है, मैं यूनिफॉर्म स्टडी के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसका सेंटर से जो रेडियस है आर वो है 6400 किलोमीटर। मास ए भी मान लिया जाएगा, है ना। तो कोई मान लो इस ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है। तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस में x मीटर कर रखा हूं, है ना। तो ये डिस्टेंस ये भी वही है x मीटर, ठीक है। और कोई सैटेलाइट आपको लॉन्च अगर करना है, मान लो मैं कुछ डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ, आपको लगेगा कि सैटेलाइट है, एवरेज डायग्राम। इंटरस्टेलर टाइप का कुछ है ना, समझ गए? गेटिंग इट? आ जाओ। तो इसका मास कुछ मान लो स्मॉल m है, ये डिस्टेंस x है, इसके सेंटर से गए। तो इसका मास कुछ मान लो स्मॉल m है, ये डिस्टेंस x है, इसके सेंटर से गए। तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी है सैटेलाइट की? फटाफट बोलो, अंडर रूट gme अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है ये टोटल इसके सेंटर से x, ऐसे देखो, ठीक है। अंडर रूट, ये नोटेशन को रॉन्ग इंटरप्रेट करना है, ये अंडर रूट है, अगर कोई साइन नहीं होता है। ये क्या है? अंडर रूट। गाइस, इफ x इज इक्वल टू re, इफ x इज इक्वल टू re, इसका मतलब क्या होगा भाई? तो वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। उस दिन ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? बोलो। रूट ओवर जीएमई अपॉन आरई। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए था, ऑर्बिटल स्पीड मैंने बताया था कभी भी किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। मास ऑफ दिस सैटेलाइट, और यू कैन से द प्लैनेट, है ना, या ये ऑब्जेक्ट स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करेगा इसकी ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, एक बात और, इससे मैं एक कंक्लूजन निकालना चाहूंगा। कैसे? क्योंकि g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो जी एम ई अपॉन आर ई है, तो ये है क्या? ये है बेसिकली जी आर ई, ये होगा जी एम ई अपॉन आर ई। तो अंडर रूट जी आर ई लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट जी सरफेस पे और आर ई, है ना। तो आर 6400 किलोमीटर रख दो, जी की वैल्यू मतलब कि मीटर में दोनों रख दो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू, और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर। तो कितना आएगा? 10 रेज टू पावर 6 मीटर, तो कितना आएगा? इसकी आएगी वैल्यू 7.93 क्या किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के सरफेस के क्लोज आप चाहते हो कि कोई m मास का ऑब्जेक्ट फेंकें और अर्थ का वो चक्कर लगाए, तो आपको किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा? अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ओके, स्पीड से फेंकना पड़ेगा, अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ओके। So where is the velocity? So where is the velocity required
to escape from gravitational attraction of Earth is V escape, that is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको समझ आ रही है ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। तो वो वेलोसिटी डिफरेंट है। तो एस्केप वेलोसिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि √2 टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड की इक्वल होती है किसी भी प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है, वो जो ऑर्बिटल स्पीड होती है उसके √2 टाइम्स होती है ना, √2 टाइम्स होती है। फंडा क्लियर? कैन आई रब दिस? बिल्कुल। हाँ जी बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चों। अब लिखो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडीज। Trajectory of projected bodies of projected bodies, trajectory of projected bodies। तो फर्स्ट ऑफ ऑल this is earth, suppose this is earth of radius 6400 kilometer, that is denoted by RE, and its mass is moreover ME, is it guys? तो अगर कोई भी प्लैनेट है, मान लो इसके अराउंड कोई भी सैटेलाइट है, सॉरी प्लैनेट तो ये है, अगर वो चक्कर लगा रहा है और उसकी वेलोसिटी अगर ऑर्बिटल स्पीड के कम है तो वो ऐसे चक्कर लगाएगा, देखा, ऐसे चक्कर लगाएगा। उसकी वेलोसिटी अगर कम है v ऑर्बिटल, तो वो इस पाथ पे चक्कर लगाएगा। पहले तो ये जान लो, समझे क्या? मान लो यहाँ से वो चलेगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे आया, इधर आया और ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी है तो सेंटर में अर्थ नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, और अगर ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल है तो ये सेंटर में रख के चला जाएगा, है ना। और होगा इलिप्टिकल मोशन होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन होगा कहीं न कहीं, लेकिन मोर ओवर कहीं ऐसे होने वाला है, समझ गए? तो इस ट्रैक पे कब जाएगा? जब v इज इक्वल टू v o होगा, बताओ। और जब ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा होगी वेलोसिटी तो मोशन ऐसे होगा, ये है v इज ग्रेटर देन v नॉट। आया समझ में? और अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो ये कैसा होगा? ऐसे, देख रहे हो? एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगा, v इज ग्रेटर देन v एस्केप। वो अर्थ के लिए कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं किसी जनरल प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी जनरल प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। तो हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी, ये क्या होगी? हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी। कैसी होगी? हाइपरबोलिक
ट्रेजेक्ट्री होगी। बोलो बच्चों। और अगर वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी के इक्वल होगी तो वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी। अगर v इज इक्वल टू v स्केप होगी तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी। तो कितनी कंडीशन बताई मैंने? देखो 1 2 3 4 5 ट्रेजेक्ट्री का डिस्कशन हो गया। 5 ट्रेजेक्ट्री का डिस्कशन हो गया। Have you any trouble? अच्छा, ये I am facing some network issue. I'm sorry if I cut off in between and wouldn't be able to respond to you. It's okay, no problem. Take your time. Take your time. Take your time. Okay. बोलो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है तो जरूर पूछेंगे आप, है ना? नोट कर लीजिए इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हम थोड़ी बात को और आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो इसको मैं रब करना चाहूंगा। रब कर दूं? तो नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग करेंगे टाइप ऑफ सैटेलाइट, या कहो तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी ले सकते हैं। ले लें क्वेश्चन एक आध? बोलिए, चलो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट इज r1। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये हटा दूं। Radius of a planet is r1 and satellite revolves around it in circular orbit of radius r2। एक प्रॉब्लम लिया हमने, एक प्लैनेट है, इसकी रेडियस है r1 और एक प्लैनेट इसके अराउंड मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसे करें। ये है रेडियस r2। Clear? The radius of a planet is r1 and the satellite revolves around। तो सैटेलाइट का मास है n और प्लैनेट का मास है कैपिटल n। The period of revolution is capital T। तो guys, period of revolution is capital T। Find the acceleration due to gravity on the surface of planet। तो इस प्लैनेट पे जी कैलकुलेट करना है। वो प्लैनेट कुछ भी हो सकता है इन जनरल। आपको r1 r2 m और m पता है इन जनरल। आपको r1 r2 m और m के फॉर्म में बताना है। कैन यू प्रोसीड गाइस? तो इसके सरफेस पे जो फार्मूला होगा gp क्या होगा? gm अपॉन इसका जो क्या होगा? डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r1 डिस्टेंस है, इसके सरफेस की बात चल रही है, ये बताओ समझ गए? पहले तो ये होगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, तो केपलर्स सेकेंड लॉ क्या कहता है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, अगर आपसे पूछना है, ठीक है? तो केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सॉरी,
टी निकालना है ना, तो थर्ड लॉ से निकलेगा ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है कि नहीं? तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या, जी एम, प्लेनेट, प्लेनेट का जो मास है वो जी एम पी करते हैं, कैपिटल पी मान एम माना है तो ये भी मान लो, 4 पाई स्क्वायर जी एम इनटू क्या, R1 क्यूब या R2 क्यूब होगा भाई, R2 क्यूब होगा, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं? तो जो सरफेस की बात है, सरफेस पे तो आप जीएमपी की वैल्यू इसमें डाल दो, या जीएम की वैल्यू इसमें डाल दो, है ना, जीएम की वैल्यू, क्योंकि इसमें R1 R2 के फॉर्म में नहीं, तो जीएम की वैल्यू देखो, ये इसको इधर करो, तो जीएम कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर R2 क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, पुट कर दो वैल्यू, सो जीपी कैन बी रिटन एज, जीएम की वैल्यू क्या निकला, 4 पाई स्क्वायर R2 क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और पहले से R1 स्क्वायर नीचे था, ये आंसर है। चमका, 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 बोल नहीं रहे हो तुम लोग, इतना सन्नाटा क्यों है, तब तो नहीं था, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, इतना सन्नाटा क्यों है, तब तो नहीं था। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन, तुमको भव्या को समझ आ गया, नीतिका को आ गया, अनुरीत को, गुरजीत, और बोलो गुरुताज, नेक्स्ट, और कोई, और बोलो गुरुताज, नेक्स्ट, और कोई है मार्केट में? नहीं है, आओ बच्चों। तो एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, अभी मुझे विश्वास तभी होगा जब आप ये क्वेश्चन दूसरा वाला को टैकल कर लोगे, है ना? तो संभालना, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है मार्केट, लॉन्च हो गया है। इफ द अर्थ बी वन ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है, फ्रॉम सन, ठीक है, if earth be one half its present distance from the sun, ये देखा इक्वेशन टेक्निकल, if earth be one half its present distance from the sun, ये देखा इक्वेशन टेक्निकल तुम्हारे लिए। तो बच्चों, तुम्हारे लिए, तो बच्चों अगर ये मान लो है सन, क्या है सन, तो सन की, हालांकि ऐसा ऑर्बिटल है नहीं मोशन का प्लैनेट जो अर्थ है सन कह रहा हूं, लेकिन मैं मान लेता हूं सन है, कैपिटल है, ये डिस्टेंस है मान लो कुछ, तो श्रिंक करके डिस्टेंस यहाँ पे अर्थ मान लो इसके पास आ गई आधा डिस्टेंस पहले, if earth be one half of its present distance from the sun, how many days will be in 1 year? तो 1 ईयर में कितना दिन होगा? अभी तो होता है 365 डेज अप्रॉक्स इस टाइम में, तो उसका डिस्टेंस अगर हाफ होगा तो 1 साल में कितना दिन होगा? ये उसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। तो तुम लोग अटेम्प्ट करोगे सर? अरे करोगे? कर दो, जल्दी कर दो।
अभी अभी साल भर में या 1 ईयर में हाउ मेनी डेज 365 डेज, यही है। अच्छा, तो जब हाफ डिस्टेंस क्लोज आ जाएगी तब कितना होगा? टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, करो फटाफट करो फटाफट। क्वेश्चन अभी भी है वही वाला, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, है ना, और उसको कोरिलेट करके बताइए कितना दिन होगा। ऑप्शन कहो तो दे दूं, ऑप्शन दे दूं, चलो इसमें ऑप्शन देता हूं, ए बी सी डी। 229 days, 129 days, 329 days या 29 days। करेक्ट के लिए +4 मार्क्स, फॉर रॉन्ग इट इज -1 एंड करेक्ट के लिए +4 मार्क्स, फॉर रॉन्ग इट इज -1 एंड the aspirant who will not attempt I will award -5 marks, is it? आ जाओ बोलो। कंपेयर करके बता दो फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है। कंपेयर करके बता दो फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है। भाई बताना पड़ेगा। भाई तुम लोग वेरीफाई करो चलो। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये फंडा है। अब क्या कह रहा है? अभी जो डिस्टेंस था, अभी जो डिस्टेंस था, तो उससे मैं कर रहा हूं भाई T1/T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दें? R1/R2 क्यूब। अरे ये तो होगा R1/R2 क्यूब, और R2 की वैल्यू R1/2 मानी गई है। पहले जो डिस्टेंस था उसको हमने मान लिया R1, अब जो डिस्टेंस है इसको मान लिया R2, और R2 है R1/2। तो इस टाइम पीरियड T1 था, इस टाइम पीरियड T2 है, तो T1/T2 करके ऐसे आ जाएगा, पुट कर दो। So guys, T2 is equal to T1 into R2 by R1 to the power 3/2 होगा। और हमें R1 पता है, देख रहे हो ये वाली कहानी, इसके फॉर्म है ना, ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा ना, ठीक है। R2 की वैल्यू R1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे R1/2, तो ये R1 से R1 कैंसिल, 1/2 टू द पावर 3/2, और T1 की वैल्यू पता है 365 days upon 1/2 to the power 3/2। आ जाओ। तो ये कितना हो गया 365 upon 2 to the power 3/2,
खत्म, आसान हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है? T2 is equal to 365 upon 2 to the power 3 by 2 मतलब √2 into 2, ये तो होगा 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2 ऐसा। तो 365 का हाफ करो, उसको √2 से डिवाइड करो, देखो कितना दिन आता है। अबे ये तो कर दो, तो कितना दिन आता है? अबे ये तो कर दो। कर दो। अप्रोक्सीमेटली 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 360 है का मतलब 180 और प्लस 2.5, 182.5 डिवाइडेड बाय √2, √2 का मतलब 1.414, करो ना। वन 82.5, हाँ गुड, 129 सही, 129 इज द आंसर। उस दिन साल भर में इतने में हैप्पी न्यू ईयर मनने लगेगा उस टाइम। 129 डेज पे 1 ईयर होने लगेगा। मजा आया? ठीक है, और देखो एक और क्वेश्चन नहीं है ऐसा, और एक क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के लिए, बताओ बच्चों। Guys, can we take more example? Do you require? बोलो यार, तुम लोग कुछ बोलते तो हो नहीं। अच्छा चलो, कुछ एक लोग कह रहे हैं कि और एक क्वेश्चन और। A satellite revolves around the planet in an elliptical orbit. Its perigee and apogee are 0.5 10 raised to, समझ गए? पेरीहिलियन और एपिहिलियन वाला कॉन्सेप्ट सही है। आओ पहले डायग्राम तो बना लो, ये लो। तो ये तो तुम्हारा क्या है, सन रहेगा ये, क्या रहेगा? सन। ये पॉइंट इसको कह रहा है पेरी, पेरीहिलियन पॉइंट का पेरी ये, और ये एपीडी। आया समझ? मान लो घूमते हुए कहीं यहाँ आ गया, इसकी वेलोसिटी है, ठीक चलेगा। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी v होगी मिनिमम, और यहाँ पे v होगी मैक्सिमम। यहाँ पे होगा r मिनिमम और ये वाला r मैक्सिमम। सन्नाटो ठीक है। आज कह रहा है सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स पेरियड एपोगी 0.5 10 raised to power 7 मीटर and 1.5 10 raised to power 7 मीटर। समझे? अरे समझ आया? ठीक है। तो पेरिगी है 0.5 10 raised to power 0.5 10 raised to power 7 मीटर। इसको पेरिगी कहता है और इसको एपीगी कहता है। या यहाँ पे तो ये आगे एपीगी है यार। इस पॉइंट के मैक्सिमम पॉइंट के क्लोजर वाला पॉइंट को एपीगी कहा जाता है
तो ये है 1.5 into 10⁻⁷ मीटर। तो ये देख के एग्जाम में घबराना नहीं कि एपीगी और पेरी क्या है, पेरीहिलियन एपीहिलियन क्या है, ये सब सन्नाटो को पता है। हाँ जी बोलो, ठीक क्लियर है? बोर्ड थोड़ा समझ आ रहा है? हाँ तो गाइस, तो पूछ क्या रहा है? If the minimum speed of a satellite in orbit is 5 into 10⁻³ meter per second, V minimum 5 into 10⁻³ meter per second, 5 its maximum velocity in orbit। भाई ये वाली वेलोसिटी पता है, सॉरी ये वाली और ये वाली पता करना है, तो v max पता करना है। अब सन्नाटो जरा दिमाग लगाओ कि इसमें क्या करना है। क्या इसमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम लगा लें? बिल्कुल लगा लें, ठीक है। लिखो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर by the law of conservation of angular momentum, mv max r1 is equal to mv minimum r2। mv max r1 is equal to mv minimum r2। ये समझ में आया? इसको मैं r2 कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये मिनिमम होगा इसके पॉइंट के आसपास, b मिनिमम। तो mv r2 is equal to mv minimum r2 is equal to mv max r minimum। समझ गए? तो ये है r1 और ये है r2, कहानी क्लियर। और r1 r2 की वैल्यू पता है, पूछ क्या रहा है r मैक्सिमम, तो n तो गया नहीं रहा आज। तो v minimum into r2 by r1, तो जी v मिनिमम कहीं दिया है, ठीक है। हाँ 5 into 10⁻³ into, अबे r2 किधर गया? ठीक है, हाँ 1.5 into 10⁻⁷ अपॉन नीचे वाला 0.5 into 10⁻⁷, 7 7 कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल, 5 3 are 15, 5 3 are 15 into 10⁻³ अभी क्या है, ये सब मीटर मीटर का चक्कर आ रहा है। मीन्स की 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो ज्यादा है यार भाई, 1000 है ना, तो 15,000 होगा क्या? तो ऐसे देखें 1 2 3, हाँ भाई 15 किलोमीटर पर सेकेंड, इट्स टू मच। देखा देखा 15 किलोमीटर पर सेकेंड है, देखा 15 किलोमीटर पर सेकेंड है, मैक्सिमम। और अर्थ वाले केस में ये डिस्टेंस अगर डाल दोगे तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अर्थ के अराउंड, सॉरी भाई सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है। कुछ चमका? एपिगी और पेरिगी अर्थ और सन के लिए कुछ डिफरेंट होगी, तभी वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आती है। तो आज इतना ही, बातें और भी है नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हंग्री फॉर
knowledge.